Good morning, everybody. I'm Dr. Mukesh Parikh, and I'm live for 18 July's class. Kindly join us. We will be discussing today some other features of Anglo-Saxon poetry, and I'll be also talking about different quality Middle English and Anglo-Saxon English poetry has. And as you all know that in our last classes, few of our last classes, we already have talked about so many different things. Uh, for example, the name of the poems, major important poems which already have been asked in the exam, or there is a possibility of they are uh, asked in the exam. So in today's class, I'll simply be just touching around one aspect of Anglo-Saxon poetry, or say Middle English poetry. Why I say Anglo-Saxon as well as Middle English? Because somewhere the attributes and some basic things of Anglo-Saxon poetry, it was transferred to Middle English. English is English, though there were other influences on that language, and because of that, many things changed. So when a teacher says Anglo-Saxon English, or say sometimes, because Anglo-Norman, when we say after the influence of or the attack of the French people, it assimilated certain words from French language. That is a different issue, and that I will discuss. I have already sent the material to the online classes students, particularly those who have joined us. I'm talking about the paid students, and I'll be discussing those particular words, because every net they ask us a question. Either they ask us a question pertaining to the pronunciation, which changed. For example, in 2 3 classes back, we talked about the great vowel shift. Okay, so let me talk about that. Whatever I have been delivering in these few lectures, some student may get baffled, like what kind of questions will be there. They have repeatedly been asking us questions about uh, the name of the poem, or some Middle English poem, or say Anglo-Saxon poem. Sometimes they ask us, like a particular name of that library where the poem was found. Somewhere they ask us a particular meaning of an Anglo-Saxon word. For example, the dream of the rood. And they asked us a question like, what is the meaning of the word rood? And as you all know that now, those who have joined us know it, like rood means cross. Okay. They also ask us the influences of the other languages on English language, which was visible in the Middle English. And then every student, when he starts reading Chaucer, he is mostly get confused that what kind of language is this, because there is always a predominance of abundance of extra vowels at the end of the spelling. And apart from that, there are certain things which are right now I'm talking about the language, the linguistic things. In yesterday's lecture, I talked about different books which were famous in Anglo-Saxon, or say Middle English period. And because when I say Anglo-Saxon, it was altogether an oral phenomenon. So most of the times, Beowulf is the only poem, on which, based on which they ask us question. Now, come to my website mukeshparikh.com either, or say englishcosmos.org. Most of the students have complained to me that they did not find my blog on this website mukeshparikh.com. So they can go to another website, this English Cosmos, that is the name of my institute, englishcosmos.org. वहाँ पे आप लोग .com ना लगा करके .org लगा दीजिए. वहाँ पे आपको ब्लॉग दिख जाएगा अगर आप लैपटॉप पे खोलते हो तो. और अगर आप फोन पे खोलते हो तो जहाँ पे फोन नंबर लिखे हुए हैं वहाँ पे एक 3 लाइन्स दे रखी, 3 बार्स हॉरिजॉन्टल, उनको आप टच करेंगे तो आपको दिख जाएगा वो ब्लॉग. उस पे 18 जुलाई की एंट्री में आई हैव गिवन द मटेरियल ओवर देयर. ओके.
Have you got the material? You must have noticed that on the blog I have uploaded a topic for 18 July FB Live class. And the topic of today's lecture is Some Facts of Anglo-Saxon Poetry and 2 points by John Donne. Kindly say yes if you have found the material so that we can start the class systematically. Now, in the very first paragraph, if you go there on my website, you will find that I have talked about the influence of the Germanic languages. And there you will see that I'm talking about kenning. Now, write down the word kenning. Because Anglo-Saxon poetry, there is a preabundance of, or say predominance of, particularly 3 or 4 types of literary devices which are important from study point of view, and they mostly ask us these questions in all the entrance exams, in all the set exams, and continuously they have been asking this question in net exam. क्या होता है एंग्लो सेक्सन पोइट्री में, वो जो पोइट्री है वो इस तरह की पोइट्री नहीं है जिसको हम आज लिखते हैं. वो अपनी बात को कहने के लिए कुछ खास किस्म के स्टाइल को यूज करते हैं. उसमें एक पहला स्टाइल है जिसका नाम है कैनिंग. तो लिख लीजिए, क्योंकि मैं एंग्लो सेक्सन पोइट्री की बात आधे घंटे में करूंगा. आधे घंटे में आई विल बी टीचिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम टुडे, जो इस साल एग्जाम में आने की उम्मीद है. कैनिंग लिख लिया आपने, कैनिंग. और कैनिंग की डेफिनेशन भी मैंने दे रखी. कैनिंग क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ मेटाफर व्हेन यू डायरेक्टली डोंट टॉक अबाउट समथिंग. Canning is a literary device in which you directly don't talk about something. You talk about that thing by in a roundabout manner. For example, there are 2 examples which I have cited there on my blog. एक तो मैंने कहा है कि जब एंग्लो सेक्सन लोगों को खास तौर पे बेओवुल्फ जो पोएम है, बेओवुल्फ के राइटर का पता नहीं है, एनोनिमस राइटर ने ये पोएम लिखी है. तो एंग्लो सेक्सन पोइट्री में कैनिंग का बहुत इस्तेमाल हुआ है. कैनिंग में क्या होता है? डायरेक्ट बात नहीं. जैसे मुझे कहना है समुद्र, ओशन, आई वांट टू टॉक अबाउट, देन द राइटर विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट ओशन डायरेक्टली. ही विल बी सेइंग दैट द वेल रोड. वेल रोड का मतलब है जिसपे वेल्स चलती हैं. ओके, सो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ लिटरेरी एलिमेंट. एंड ये क्वेश्चन नेट में 2 बार आ चुका है कि व्हाट इज कैनिंग. 2 बार आ चुका है, तो इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ टीचर टू टेल यू दैट नेक्स्ट टाइम ऑल्सो समवेयर, बिकॉज अभी काफी सालों से ये क्वेश्चन नहीं पूछा है. बट इट इज अ वेरी कॉमन थिंग कि अगर एक स्टूडेंट को एंग्लो सेक्सन, इफ समवन नोज अबाउट एंग्लो सेक्सन पोइट्री, तो उसको कैनिंग पता होना चाहिए. क्लियर? फिर बात करते हैं, एक सिजोरा बहुत यूज होता है इसमें. सिजोरा, CAESURA. सिजोरा मीन्स देर आर अ लॉट मेनी पॉजेस. ओके, so this is the second element which is predominant in English poems, old English poems, Anglo-Saxon poetry. Third thing is litotes. एक वर्ड लिखिए, LITOTES. Litotes से ये मत सोचिएगा कि इट्स अ प्लूरल वर्ड, बिकॉज इट्स अ ग्रीक वर्ड. लाइटोट एक वर्ड है ग्रीक में जिसका मतलब होता है सिंपल. इसका मतलब है प्लेनली आप कोई बात कह रहे हो. बट लेटर ऑन विद रेनेसा, जैसे सिसरो के लेटर्स में लाइटोटिस पाया गया था. लाइटोटिस क्या होता है? एक फिगर ऑफ स्पीच है, एक लिटरेरी डिवाइस है. इट इज अ काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइस इन विच यू डायरेक्टली डोंट से एनीथिंग. यू यूज सम अंडरस्टेटमेंट ईदर, और you use double negatives. Means you contrast one negative by the other, and that way you stress your point. I hope you can understand my point. कि इसमें इसको लाइटोटीज बोलते हैं. जैसे दिस sword in my hand is of no use. Don't think so. अब इस सेंटेंस में क्या मैंने यूज किया? दिस the example I have cited from Anglo-Saxon poetry, particularly Beowulf. No, useless sword in my hand. Do you think this sword is useless in my hand? अब इसका लाइन का मतलब क्या निकल रहा है कि मतलब जैसे मैंने कहा कि मैंने फालतू में अपने हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ रखी है. इसका क्या मतलब है बताइए? दैट in an indirect way I want to say कि मैंने पेंसिल लिखने के लिए पकड़ रखी है. जैसे मैंने कहा कि he is not a dull student. Not is a negative word and dull is also a negative word. So the two negatives then get joined and gives us a positive meaning. तो इसको हम बोलते हैं लाइटोटीज. तो इसी बहाने आपको ये लाइटोटीज इज वेरी कॉमन इन टुडेज लैंग्वेज. एंड इफ यू गो एंड सर्च, दो आई हैव ऑलरेडी गिवन मेनी एग्जांपल्स ऑफ लाइटोटीज, you know, on my blog.
बट अगर आप लाइटोटिस को स्टडी करें तो यू विल फाइंड दैट लाइटोटिस इज यूज्ड ऑलमोस्ट इन ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड. नाउ सिजोरा की बात हो गई, लाइटोटिस की बात हो गई और कैनिंग की बात हो गई है. अपार्ट फ्रॉम दैट दे ऑल्सो यूज अ लॉट मच सिमिलीज एंड मेटाफर्स. अपनी पोएम्स को बहुत ज़्यादा बल्कि बनाने के लिए जो एंग्लो सेक्सन राइटर्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया है जिसमें मेटाफर्स और सिमिली. तो ये एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, किस तरह से पूछेंगे ये आई डोंट नो, बट आप समझ जाओ कि इफ आई हैव डिस्कस्ड दिस इन योर क्लास इट मीन्स इट इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. उसके बाद लिखिए, आप देखेंगे अगर आप ब्लॉग में आगे जाएंगे यू विल फाइंड द पोएट्स, देयर इज अ हेडिंग द पोएट्स. अब एंग्लो सेक्सन पीरियड में कितने पोएट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आई हैव मेड अ लिस्ट. लाइक एक तो कैडमन बहुत फेमस है, एक बीड बहुत फेमस है, एक किंग अल्फ्रेड बहुत फेमस है, किंग अल्फ्रेड पे क्वेश्चन आ रखा है, एंड सिनेवुल्फ. और इनमें से ऑफ दीज ओनली कैडमन, बीड एंड अल्फ्रेड हैव नोन बायोग्राफीज. ये भी क्वेश्चन बनता है कि चार पोएट्स में बात कर रहा हूं, कैडमन, किंग अल्फ्रेड, सिनेवुल्फ और बीड. इन चार में से तीन की बायोग्राफीज मिलती हैं, मतलब वी नो द लाइफ सोर्सेज ऑफ दीज पोएट्स. ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है. कैडमन के हिम को इंग्लिश लिटरेचर का ओनली सर्वाइविंग टेक्स्ट माना गया है. लिख लीजिए दोबारा से कि कैडमन्स हिम, HYMN, हिम का मतलब होता है भजन. इट्स नॉट मोर देन 9 लाइन्स बट इट इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंट. एक वर्ड है इंग्लिश में EXTANT. एक्सटेंट का मतलब होता है समथिंग विच स्टिल सर्वाइव्स. तो कैडमन का जो हिम है HYMN वो ऐसे माना जाता है. और इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है, कैडमन इज द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश. When we talk about father of English, तो किसका नाम आता है बताओ? Father of English में किसका नाम आता है? Write it down. Tell me, who is father of English? Who is father of English? Can you hear me? Can you type? It's not visible on my screen. Who is father of English? Anybody who can tell me? Geoffrey Chaucer, thank God. And who is father of Old English, Anglo-Saxon English? Who is father of Anglo-Saxon English? That is Caedmon. CAEDMON, Caedmon. Caedmon की स्पेलिंग याद रखिएगा. Caedmon ने क्या लिखा था? Caedmon का एक हिम, HYMN, हिम का मतलब होता है रिलीजियस राइटिंग. वो एक्सटेंट है. एक्सटेंट का मतलब मैंने अभी बताया आपको, सर्वाइविंग. उस पर क्वेश्चन आएगा. तो ये आई हैव डिस्कस्ड इन सच अ मैनर सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. इसके अलावा दोज हु हैव जस्ट जॉइंड अस, उनके लिए मैं बता दूं, आई हैव डिस्कस्ड कैनिंग, आई हैव डिस्कस्ड लाइटोटिस, आई हैव डिस्कस्ड सिजोरा. सिजोरा का मतलब क्या होता है बताइए? सिजोरा का मतलब क्या होता है? CAESURA. सिजोरा का मतलब होता है अ काइंड ऑफ अ लॉन्गर पॉज. लॉन्गर पॉज. एक होता है सिंपल पॉज व्हेन यू पुट अ कॉमा. ओके, देन इट्स कॉल्ड एज. देखिए पॉजेस कहाँ कहाँ आते हैं, इस पर भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. व्हेन वी राइट समथिंग, तो इसमें थोड़ा सा लिंग्विस्टिक्स का और ग्रामर का पार्ट आपको स्टडी करना चाहिए कि व्हेन वी राइट अ सेंटेंस, व्हेन वी स्पीक समथिंग, नेचुरली वेयर डू वी पॉज? हम लोग कहाँ कहाँ रुकते हैं? हम लोग रुकते हैं इसीलिए आपने कभी देखा होगा, देन व्हेन वी टॉक अबाउट द हायरार्की ऑफ सेंटेंस, so we talk about lexeme, then we talk about the lexis item, that is word, then we talk about phrases, then we talk about phrases के साथ साथ, phrases का मतलब पता है ना, 2-3 words when they get together, जिसको definition के point of view से phrase बोलते हैं. उसके बाद आ जाता है जिसमें parts of speech आती हैं. और जब एक simple sentence की हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, कई बार ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन वेदर यू आर यूजिंग अ ट्रांजिटिव वर्ब और नॉट. तो हम लोग कहाँ पॉज करते हैं? सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक बार हम वन डे आई वाज टीचिंग वे बैक इन अ कॉलेज एंड देयर द क्लास फॉर, एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट स्टूडेंट डोंट रीड. कैसे करते हैं अभी हैं जो द बेसिक्स ऑफ रीडिंग. नेट का पेपर जब हम उठा के देखते हैं, कोई एंट्रेंस एग्जाम का पेपर हम उठा के देखते हैं,
तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपको कुछ बेसिक्स आने चाहिए कि रीड कैसे करना है, कहाँ पॉज आएगा। तो कोई भी प्रोफेसर आपको इंटरव्यू में चेक कर सकता है ना कि आप कैसे रीड कर रहे हो। अभी मेरा आज का लेक्चर रीडिंग नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सिजोरा, बिकॉज सिजोरा क्रिएट्स म्यूजिक एंड म्यूजिक लाइज इन, oh my god, I think there was some connectivity problem. Okay, no problem. What I was talking about, I was talking about pause, that music lies in pause. चलिए बताइए कि पोएम का म्यूजिक कहाँ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी से दैट इट लाइज इन द मीटर, इट लाइज इन द प्रोनाउंसिएशन, इट लाइज इन द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स एंड ऑल। बट एक्चुअली कभी भी देखिएगा जब हम बोल रहे हैं तो जब हम पॉज करते हैं तो उससे एक म्यूजिक, देखिए जब हम लोग ऐसे ऐसे रिदम की बात करते हैं तो द मोमेंट वी स्टॉप तब हमारे को लगता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूजिक। It means caesura is, as I talked about, that it is an integral part of Anglo-Saxon poetry. लेकिन आपने देखा होगा कि आयम्बिक पेंटामीटर में मिल्टन हो, चाहे वो शेक्सपियर हो, चाहे वो मार्लो हो, चाहे वो बेन जॉनसन हो, चाहे वो वर्ड्सवर्थ हो, और यहाँ तक कि yesterday I was reading about in memoriam टेनिसन। एंड आपको मालूम होना चाहिए, चलिए अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं लाइव क्लास में कि हु इज द मोस्ट म्यूजिकल पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, चलिए बताइए हु इज द मोस्ट म्यूजिकल पोएट ऑफ और मोस्ट लिरिकल पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? क्योंकि आई हैव बीन गाइडिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। नेट और सेट का एग्जाम के अलावा भी जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं वो मेरे यहाँ एडमिशन लेते हैं। म्यूजिक इन पॉज हाई लो पिच, ठीक है, कुछ ठीक है आंसर, नॉट करेक्ट, 100% करेक्ट नहीं है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है, बिकॉज हाई और लो पिच की जब हम बात करेंगे, क्वेश्चन सुन लिया है, मैं इसका वेट कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ, क्योंकि साइलेंटली इफ आई सिट फॉर योर आंसर देन इट विल बी वेरी ऑकवर्ड फॉर अ टीचर इन अ लाइव क्लास। बताइए मुझे, हु इज द मोस्ट म्यूजिकल पोएट? गूगल कर रहे हो क्या? Who is the most musical or lyrical poet of English literature? I was solving a question actually, because I'm also writing a book of objective questions for my net and set students. तो उसमें पता चला कि there was a John Donne. No, I'm sorry. It is, and the award goes to Dr. Parik. उसका आंसर है टेनिसन। Tennyson is considered to be the most musical, lyrical. ऐसा कहा जाता है कि he knew the soul of every syllable, every vowel. क्योंकि अगर आप देखिए हमारे इंडिया में इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ाने वाले जो लोग हैं, if you go to private colleges either or universities or say government universities, I've seen they are mostly busy in covering the courses. तो हमारा जो ध्यान है वो कोर्स कवर करते करते हम 10th 12th कर लेते हैं, कोर्स कवर करते करते वी गो टू द ग्रेजुएशन क्लासेस, और कोर्स कवर करते करते पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और नेट क्लास में आके भी बच्चा मुझसे ये कहने लग जाता है कि कोर्स कवर करा दो। दैट इज द रीजन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड हाफ विट, बट समवेयर उनको बहुत सारी बातें मालूम नहीं होती है। शायद यही कारण है कि बेसिक क्वालिफिकेशन को तो कर दिया गया है नेट, और यूनिवर्सिटी में अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए कंपलसरी कर दिया गया है पीएचडी, बिकॉज बोथ द रिसर्च एप्टीट्यूड एंड योर बेसिक नॉलेज दैट बोथ आर रिक्वायर्ड। चलिए इस क्लास को और इंपॉर्टेंट बनाता हूं। एक चीज है जो मुझे याद आ रही है व्हेन आई टॉक अबाउट एंग्लो सेक्सन पोइट्री और ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, तो उसके साथ में वन थिंग इज ऑल्सो एसोसिएटेड, एक नाम और है जो एसोसिएटेड है, हालांकि मैं सिजोरा की बात कर रहा था, उसी से रिलेटेड है ये बात, एंड दैट इज हॉपकिंस। आपने हॉपकिंस का नाम सुना होगा। हॉपकिंस जिसने कर्टल सोनेट को खोजा था, हॉपकिंस जिनको हम पढ़ते हैं, जिन्होंने विक्टोरियन एज में लिखा, लेकिन उनकी जो पोएम्स है वो 20th सेंचुरी में पब्लिश हुई थी। ही वॉज अ प्रीस्ट। हाँ ना में जवाब दीजिए, पता है कि नहीं है? हॉपकिंस।
तो जी एम हॉपकिंस पूरा नाम, जेरार्ड मैनली हॉपकिंस. Hopkins talked about in his poetry about inscape, in stress and उन्होंने sprung rhythm का नाम लिया है. आई एम एसोसिएटिंग हिज नेम सो दैट यू कैन, जब कभी आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ओके, मैं इन स्ट्रेस और इनस्केप को तो अभी छोड़ देता हूं बिकॉज दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस क्लास. बट स्प्रंग रिदम, स्प्रंग रिदम क्या होता है? अगर आप नर्सरी राइम को पढ़ते हो, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, तो आप देखिए जरा, एक साथ बहुत सारे सिलेबल्स आ रहे हैं, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वुल, चाहे वो बाइसिलेबिक हो, मोस्टली बाइसिलेबिक होते हैं नर्सरी राइम में, बट ऑल द सिलेबल्स कम टुगेदर ओके ऑन वन प्लेस. तो ये जो रैपिडिटी क्रिएट करते हैं नर्सरी राइम की तरह, रैपिडिटी, क्योंकि जब हम लोग इन द बिगिनिंग ऑफ एनी लैंग्वेज होते हैं तो हमारा और सपोज यू नो आवर मेजर टास्क इज टू रिसाइट अ पोएम, टू सिंग अ पोएम. पोएम मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हम लोग पोएम पढ़ते रहते हैं, बट एग्जैक्टली आई एम टॉकिंग अबाउट सॉन्ग, लिरिक, ये सब चीज़ों को जब गाना होता है तो हम लोग उनको क्या करते हैं, थोड़ा समझाता हूँ. देखो आपको कोई हिंदी गाना कभी देखना कि रिदम के हिसाब से म्यूजिक डायरेक्टर क्या करता है, उस वर्ड को शॉर्ट कर देता है. जैसे एक गाना मुझे याद आ रहा है, आई एम जस्ट यू नो साइटिंग दिस सॉन्ग सो दैट आई कैन टेल यू द एग्जैक्ट थिंग्स ऑफ यू नो म्यूजिकलिटी विच इज वेरी मच प्रेजेंट इन द पोएम. ओके, और एंग्लो सेक्सन पोइट्री बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी, एलिट्रेटिव थी. एलिट्रेटिव क्या होता है? बहुत सारे सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स होते हैं. तो मैं बार बार आज ओल्ड इंग्लिश के बारे में बात करता रहूंगा. उसमें कैनिंग होती है, उसमें लाइटोटीज होती है, उसमें मेटाफोर्स होते हैं, उसमें सिमिलीज होती है, उसमें रैपिडिटी होती है. तो व्हेन आई टॉक अबाउट रैपिडिटी तो देन मुझे ये सब चीजें याद आती है, मुझे टेनिसन याद आते हैं. मुझे ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि हॉपकिंस को हम कौन से पोएट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जो स्प्रंग रिदम दिया है, स्प्रंग मतलब स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, थर्ड फॉर्म, ओके, रिदम, जिसमें से रिदम उछल उछल के बाहर आता हो, दैट इज स्प्रंग रिदम. वो कैसे आता हो? जब आप बहुत सारे सिलेबल्स एक जगह लिख देते हो. व्हेन यू टॉक अबाउट, व्हेन ऑन योर टंग देयर आर सो मेनी सिलेबल्स, सो मेनी स्ट्रेसिंग साउंड्स, यू नो, स्ट्रेसेस बहुत सारे आ जाए, बहुत सारे स्ट्रेसेस आ जाए. तो जैसे वर्ड को हम कई बार कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं रिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से. जैसे गाना था लता मंगेशकर का और एक डुएट है, तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, तो 16 17 17, अब 18 को उसमें 18 कह गया, 18. अब ये 18 नहीं होता है, इट इज 18, लेकिन वो म्यूजिक में डालने के लिए कई बार 18 कर देते हैं. उस गाने को अगर आप कभी सुनो तो यू विल फाइंड कि ऐसा क्यों किया गया. और भी देयर आर सो मेनी, व्हेन आई सी इंटरव्यूज ऑफ दीज काइंड ऑफ सिंगर्स, दे से दैट यू नो वी टेक लिबर्टीज बिकॉज म्यूजिक इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड्स. तो इससे पता चलता है कि एंग्लो सेक्सन पोइट्री, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में म्यूजिक जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. म्यूजिक से ही भावों को दिया जाता था, इमोशंस, द फीलिंग्स, यू नो, द फेल्ट रियलिटीज. अच्छा, अब उनकी जो पोएम्स होती थी उनमें मोस्टली वो क्या बातें करते थे? इधर दे आर टॉकिंग अबाउट मोरालिटी, जो कि हमने लास्ट 2-3 क्लासेस में बात की है. इधर दे टॉक अबाउट मोरालिटी और दे टॉक अबाउट यू नो से ब्रेवरी. शिवलरी इज ऑलवेज प्रेजेंट. क्योंकि अगर आप ओल्ड इंग्लिश, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्ड इंग्लिश ओनली, आप किसी भी पुराने कल्चर में चले जाइए तो उस कल्चर में टू सेव योर ऑनर इज द ओनली एग्जिस्टेंशियल थिंग्स यू नो यू आर लिविंग फॉर. कैसे? कि आपको कोई किसी कारण से किसी को सेव करना है, you have to save the honor of your land, you have to save the honor of your throne, you have to save the honor of your say beloved, है ना, wife, daughter. तो जो जड़ जोरू जमीन का जो कॉन्सेप्ट है वो पुरानी पोइट्री में सब जगह पाया जाता है. और मैन इज ईदर फाइटिंग विद द इविल्स ऑफ नेचर और द इविल्स ऑफ मैनकाइंड, और डेविलिश सुपरनैचुरल एलिमेंट एडिड होते हैं. तो उसमें जोश दिलाने के लिए पोएम के अंदर एलिट्रेटिव मीटर रखा जाता है और वो बड़ी रैपिड होती है. सो रैपिडिटी इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री. फिर आपको, अगर आप ब्लॉग पे जाएंगे तो आप देखेंगे रैपिडिटी के बाद मैंने हिस्ट्रियोग्राफी लिखा हुआ है कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर जो कि 1066 तक आते आते लगभग गायब हो गया था बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ द नॉर्मन एलिमेंट इन द पोइट्री, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद. और उसके बाद हम देखते हैं कि लाइब्रेरीज वगैरह में काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो गई थी. तो जो भी इंग्लिश सेंट्स आए थे इंग्लैंड में, उनकी हिस्ट्रीज को लिखा जाने लगा.
तो इसीलिए हिस्ट्रियोग्राफी भी लिखी गई। अब आती है बात कि आप उस लास्ट पैराग्राफ पे आइए लिटरेरी डिवाइसेस से पहले, तो यू विल फाइंड वन थिंग, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर हैज हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन मॉडर्न लिटरेचर। अब वो मैं थोड़ी बात ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हॉपकिंस, द इन्फ्लुएंस ऑफ ओल्ड इंग्लिश ऑन हॉपकिंस पोइट्री। बट देखिए जरा, सम ऑफ द बेस्ट नोन ट्रांसलेशंस इंक्लूड विलियम मॉरिस ट्रांसलेशन ऑफ बेओवुल्फ। इस पे क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। शेमस हीने, जिनको नोबेल प्राइज मिला था बेओवुल्फ का लेटेस्ट ट्रांसलेशन करने के लिए, बट देन बिफोर हिम ऑल्सो हु ट्रांसलेटेड बेओवुल्फ। तो देखिए मैंने इस पर एक पॉइंट लिखा है, विलियम मॉरिस एक एलिजाबेथन एक विक्टोरियन और रोमांटिक राइटर हुए ये। एंड एजरा पाउंड्स ट्रांसलेशन ऑफ द सी फेरर। एजरा पाउंड का नाम आपने सुना होगा, जिसको डेडिकेट की थी द वेस्टलैंड, है ना, टीएस एलियट ने। तो एजरा पाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा वो इमेजिस्ट पोइट हुए 20th सेंचुरी के, इज अ बिग नेम। सी फेरर पोएम के बारे में ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट इन द क्लास। द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री वाज पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फॉर द मॉडर्निस्ट पोइट टीएस एलियट, आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट एजरा पाउंड एंड डब्ल्यू.एच. ऑडन। डब्ल्यू.एच. ऑडन का नाम अभी अपने अगली पोएम से रिलेटेड लेक्चर में भी आएगा। Who all were influenced by the rapidity and graceful simplicity of images in English poetry. ये सेंटेंस अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें से दे विल आस्क यू नो ओवरऑल वन क्वेश्चन, दैट रैपिडिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ एक्सप्रेशन। अब ये सिंप्लिसिटी जो वर्ड है, जैसे कि आई हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट लाइटोटीज, बिकॉज द वर्ड लाइटोटीज जो कि एक लिटरेरी डिवाइस है, इसका ग्रीक लैंग्वेज में मतलब होता है सिंपल, ओके। और उनको लगता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट सिंप्लिसिटी, बट एक्चुअली टुडे वी नो दैट यू नो समवन हु इज टॉकिंग इन लाइटोटीज इज टेकिंग लॉट मच स्पेस एंड टाइम। ये सारी बातें हमने की, ओके। अब आ जाइए आप लिटरेरी डिवाइसेस पे। कैनिंग की डेफिनेशन मैंने दे रखी है, जो कि आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, बट वेल पाथ का मैंने नाम लिया कि कैनिंग का मतलब क्या होता है, व्हेन यू डायरेक्टली डोंट टॉक अबाउट बट यू यूज अ लॉट मच यू नो हाई साउंडिंग हाइपरबोलिक मेटाफर। तो वेल पाथ का मतलब क्या हो गया, समुद्र और ओशन। और स्वैन रोड फॉर सी, स्वैन का मतलब हंस होता है। गॉड्स बेकन फॉर सन, ये एग्जाम्पल एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए आई हैव गिवन प्लेस ऑन माय ब्लॉग। रिंग गिवर फॉर किंग, क्योंकि राजा जो है वो रिंग दिया करता था, ओके। और लाइटोटीज के एग्जाम्पल्स जो है उनकी एक लंबी लिस्ट मैंने दी है, सो आई वुड लव इफ यू गो देयर। मैं कुछ एग्जाम्पल्स रीड कर रहा हूं आपके लिए। Her cooking is not terrible, exactly. Her cooking is not terrible, it means her cooking is good. Second example देखिए, Ireland is no ordinary country. It means Ireland is a very important country. You know. Third is Geoffrey, this isn't rocket science. मतलब this is very simple. अब आप कहोगे कि इसमें नॉट नहीं आया, बिकॉज जब मैंने स्टार्टिंग में समझाया था कि दो नेगेटिव मिलकर के जब एक पॉजिटिव बनाते तो उसको हम लोग मोस्टली, इसका एक एग्जाम्पल मियोसिस भी होता है, ओके। लेकिन लाइटोटीज में क्या होता है कि आप थोड़ा सा बात को घुमा करके कहते हो, थोड़ा अंडरस्टेट कर देते हो। इट इज नॉट रॉकेट साइंस, तो रॉकेट साइंस विच इज टफ और इज नॉट में नॉट आई गया, सो समवेयर इट इज लाइटोटीज। नेक्स्ट, योर कमेंट्री ऑन द रिलेशनशिप वॉज लेस देन स्मार्ट। लेस देन स्मार्ट मतलब इट वॉज स्टूपिड। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। एंड नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए मैंने शायद रिपीट कर दिए एग्जाम्पल्स। अब मैं लाइटोटीज के लिटरेचर में से एग्जाम्पल्स दे रहा हूं। होली सॉनेट से जस्ट ऊपर देखिए, ब्लॉक के ऊपर यू विल फाइंड दिस। द सॉर्ड वॉज नॉट यूजलेस टू द वॉरियर। The sword was not useless to the warrior. This example can appear in the exam because this comes in the poem Beowulf. Second, I am no prophet and here is no great matter. ये जो कल की क्लास में एक पोएम का मैंने नाम लिया था, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक रिटन बाय टी.एस. एलियट, उसमें लाइन आती है, आई एम नो प्रॉफिट। आई एम नो प्रॉफिट मीन टू से आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन एंड हियर इज नो ग्रेट मैटर। एंड हियर इज नो ग्रेट मैटर मीन्स इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। क्या आपको मालूम है व्हाट इज द थीम ऑफ टी.एस. एलियट्स मोस्ट फेमस पोएम जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक? इट इज हाईली आयरॉनिक पोएम, क्योंकि वो लव सॉन्ग है ही नहीं, बट द राइटर टॉक्स अबाउट लव सॉन्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आई हैव टेकन इट फ्रॉम रोमियो एंड जूलियट। नो, इट इज नॉट सो डीप एज अ वेल, नॉट सो वाइड एज अ चर्च डोर। तो आपको पता है कि उसमें जब उसको
मर्कुटियो को या उसके फ्रेंड को जब चोट लग जाती है तो हम रोमियो पूछता है कि कितनी घाव तो बहुत गहरा है, लेकिन वो कहता है कि नो इट इज नॉट सो डीप एज अ वेल, कुएं जितना गहरा तो नहीं है, मतलब कि कम गहरा है, और नॉट सो वाइड एज अ चर्च डोर, और उतना चौड़ा नहीं है जितना कि चर्च का डोर है, इसका मतलब है छोटा सा घाव है। दिस लाइन इज वर्ल्ड फेमस बच्चों। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम साइटिंग, it is from the Glass Castle by Janet Wall. You know, it is really not that hard to put food on the table. मतलब it's not that hard to put food on the table. मतलब to lay a table for dinner or lunch is very easy if that is what you decide to do. मतलब अगर तुझे काम करना है तो तुम्हें ज़्यादा टफ नहीं लगेगा. It's very easy task. And the last but not the least, taken from The Great Gatsby from F. Scott Fitzgerald. Great Gatsby को सबको पढ़ना चाहिए. It has been asked in almost every exam. Every other exam they ask us a question. I live at West Egg, the well, the less fashionable of the town, of the two. Though this is the most superficial tag to express the bizarre and not a little sinister contrast between them. अब आप कहोगे कि सर इसमें कहाँ से लाइटोटीज आ गया, क्योंकि वो साफ कह रहा है कि I live at West Egg, the well, the less fashionable of the two, though this is a most superficial tag to express. मतलब कि वो बहुत फैशनेबल टाउन है, जगह है, पर ये बड़ा सुपरफिशियल टैग है, मतलब कि उसको फैशनेबल कहना भी बहुत कम रहेगा, इसका मतलब है वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल है, ऐसे करके ये है। अब आते हैं द सेकेंड पार्ट ऑफ माई क्लास। मैंने 2 पोएम्स यहाँ पे लिख रखी है, बट आई विल नॉट टीच यू बोथ द पोएम्स टुडे। गुड मॉरो पे आइए आप लोग, जॉन डन की गुड मॉरो पोएम पे आइए बच्चों। इस पोएम को ढंग से पढ़ लीजिए, यू विल फाइंड क्वेश्चन ऑन दिस पोएम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, काइंडली शेयर दिस क्लास राइट नाउ। आप अपने अपने फेसबुक पे इसको शेयर कीजिए। इज देयर एनी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम? कैन यू हियर मी ऑल? काइंडली राइट यस सो दैट आई कैन कंटिन्यू विद द पोएम। काइंडली राइट यस so that I can continue with the poem. Is there any connectivity problem? Can you hear me? Can you hear me? My goodness. Can you hear me? I'll wait for your answer. Okay, The Good Morrow. Write down, take out this poem on my blog, The Good Morrow. Good Morrow poem is world famous. इस poem में the writer has tried to write it in the sonnet form, but actually it is not a sonnet. Okay? I wonder by my troth. पहले सेटिंग समझ लीजिए पोएम की कि गुड मॉरो का द गुड मॉरो, गुड मॉर्निंग किस लिए है और कैसी पोएम है, कितनी स्ट्रेंज पोएम है। एक ऐसी पोएम है जिसमें द राइटर हैज यू, अच्छा पॉइंट बनाते जाइए, पेन रखिए अपने हाथ में। एगेप की थ्योरी का इस्तेमाल किया है। एगेप, एक लिखिए, एक थ्योरी होती है एगेप की, EGAPE। एगेप की थ्योरी का मतलब है इट इज अ काइंड ऑफ लव बिटवीन सोल एंड गॉड। ओके, 2 तरह के लव होते हैं, जैसे इश्क हबीबी, इश्क हकीकी उर्दू में कहते हैं। एक होता है हिंदी में अगर बोले तो आध्यात्मिक प्यार, और एक होता है जो हम शरीर का प्यार करते हैं। तो इफ आई से amor and agape, there are 2 concepts. The 2 words have come from Latin and Greek. Amor, AMOUR, amor you all know. Okay, okay, no problem. अच्छा, आप क्लास के बाद में शेयर कर लीजिएगा, इसको शेयर जरूर किया कीजिए आप लोग, ठीक है। और एक और इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है। आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग मी राइट नाउ। दैट इन्फॉर्मेशन इज कि मैं शायद आपका एक पेपर पूरा सॉल्व करवाऊंगा आने वाले क्लासेस में। वो पेपर हो सकता है, मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी एक पेपर अपलोड किया है, दैट इज, और दूसरे जो बैचेज हैं उनमें भी एक पेपर अपलोड किया है, दैट इज अ पेपर ऑफ सम एंट्रेंस एग्जाम ऑफ हाई-फाई यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया।
उसके क्वेश्चंस एक नेट का स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर सकता, उसको टाइम लगता है। तो एमए एंट्रेंस के एग्जाम के टेस्ट को मैंने अपलोड किया है सो दैट स्टूडेंट्स कैन फील कि हमारी तैयारी किस लेवल में जानी चाहिए। ओके, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक वेबिनार करने जा रहा हूं, जिसको हम लेंगे फेमिनिज्म पे, फेमिनिज्म, पोस्ट फेमिनिज्म, वुमनिज्म, बहुत सारी टर्म्स आ गई हैं। सो आई शेयर्ड माय दिस पीडीएफ ऑल्सो, बट मैंने देखा कि स्टूडेंट्स उस चीज को ध्यान से लेते नहीं है। सो टू प्रिपेयर देम फॉर द कमिंग एग्जाम, आई विल बी हैविंग अ लाइव सेमिनार। मैं ऐसा करूंगा, उसके बारे में आई विल टॉक टू यू ऑन मंडे, कि मैं वो लाइव सेमिनार अपने यूट्यूब पे कब करूंगा। मैं अगले वीक में जरूर करने जा रहा हूं। अपने फ्रेंड्स को सबको बता दीजिए, सो दैट वी कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी बेनिफिटिंग आउट ऑफ दिस। और अभी बात चल रही है 2 तरह के प्यार। एक प्यार होता है शरीर का प्यार, स्त्री पुरुष का प्यार, मैन, द 2 सेक्सेस, एंड द अदर लव इज योर लव फॉर द गॉड, ऑफ सोल। तो इस पोएम के अंदर द राइटर हैज मिंगल्ड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। ये पोएम को पढ़ना उतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एब्रप्ट स्टार्टिंग है, आई वंडर बाय माय ट्रॉथ व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड। एक सेटिंग है जिसमें हम समझ सकते हैं कि शायद ये एक्स्ट्रा मैरिटल लव है, और एक लवर और एक बिलवड है, एंड दे मस्ट हैव मेड लव। दे मस्ट हैव मेड लव का मतलब क्या होता है? दे मस्ट हैव हैड इंटरकोर्स, सेक्स किया है उन्होंने। एंड कभी भी यूज नहीं करना चाहिए ये वर्ड, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, समझ के चल रहा हूं कि मेरी क्लास बैठी है। लेकिन अगर आपको ये कहना है कि लवर और बिलवड ने सेक्स किया है, तो हम उसको यूफेमिज्म में कैसे बोलते हैं? दे मेड लव। ओके, टू मेक लव का मतलब होता है सेक्स करना। सो दे मस्ट हैव मेड लव, एंड आफ्टर द swoon, that after this activity, mostly couples sleep, so they have got up either. So और एक और चीज समझ में आ रही है कि रात को they must have made love, and in the morning when they have got up, तो this sleep has become a symbolic sleep. और उठने के बाद the poet has experienced that I wonder बाय माई ट्रॉथ, मतलब मैं शपथ से कह रहा हूं, आई शपथ राइटर कह रहा है, व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड, मतलब कि दिस इंटरकोर्स, इससे पहले हम क्या वाकई क्या कर रहे थे। इसका मतलब है दैट एक सडन कुछ रियलाइजेशन राइटर की लाइफ में हुआ है। वर वी नॉट वीन्ड टिल देन, वीन्ड का मतलब क्या होता है? माँ का दूध पीना, मतलब कि इतने छोटे होना कि बचपना ही नहीं गया। वीन्ड समझते हो ना? माँ अपने बच्चे का दूध छुड़ाने के लिए, नहीं तो वो 5-5, 6-6, 7-7 साल का हो जाता है, बच्चा दूध पीता रहता है। अगर दूसरा इश्यू नहीं हो कहीं फैमिली में, तो उसको माँ क्या करती है, अपने ब्रेस्ट के ऊपर कुछ कड़वी दवाई लगाती है, और किसी तरह से बच्चों को दूध पीना छुड़वाया जाता है ताकि वो खाना खाना सीखे। आज की जनरेशन को ये सारी बातें पता नहीं है, तो उनको बड़ा अजीब लगेगा क्या क्या बोलते रहते हैं टीचर। वर वी नॉट वीन्ड टिल देन का मतलब है कि आफ्टर दिस इंटरकोर्स, लगता है हम बच्चे थे, ओके, वी वर चिल्ड्रन, but sucked on country pleasures childishly. Country pleasure का मतलब है, and again there is a dichotomy in the poem. The writer says कि city का love, मतलब city का experience is an experience, and गांव, country मतलब गांव, गांव का मतलब है गांव का बुद्धू जिसको कुछ पता नहीं हो, मतलब हम बुद्धू थे। sucked on का मतलब है, लगता है we were bred on the country pleasures, लगता है हम बिल्कुल बच्चे थे। ओके, और snorted we in the 7 sleepers den। अब ये क्वेश्चन नेट में आ सकता है। Now there is the great concept of the myth of 7 sleepers। आप लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में। मानव भारद्वाज सर, थैंक यू वेरी मच सर, हाउ आर यू। लिखिए 7 sleepers, लिख लीजिए द मिथ ऑफ 7 स्लीपर्स। अब 7 स्लीपर का मिथ जो है वो कई बच्चों को पता नहीं होता है। एक्चुअल में क्या था कि जब ये एक एंग्लो सेक्शन नहीं, क्या एंग्लो कैथलिक, सॉरी कैथलिक, रोमन कैथलिक बाइबल में एक कैथलिक्स के ऊपर शुरू से ही जुल्म होते रहे हैं, और एक कहानी ये बताई जाती है कि किस तरह से कैथलिसिज्म अभी भी जिंदा है। तो क्या हुआ कि कुछ बच्चे थे, उनको 7 स्टूडेंट, छोटे बच्चे थे, और उनको शायद उनका धर्म बदलने के लिए काफी ज्यादा प्रेशराइज किया जा रहा था, तो वो एक गुफा में जाकर सो गए। ओके, और वो कहते हैं कि 200 साल बाद बाहर निकले। तो एक मिथ है जो किताबों में उस वक्त काफी फेमस था, एंड दिस मिथ हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड बाय डिफरेंट राइटर्स। अब मैं इतनी सारी पोएम्स पढ़ा हूं तो आपको पता चले। और स्नॉटेड, लगता है हम 200 साल की
चिर निद्रा में थे, सोए जा रहे थे उन बच्चों की तरह जो अपने धर्म को बचाने के लिए उस गुफा में सो गए थे. नाउ देयर इज इन एन इनडायरेक्ट वे देयर इज अ सटायर ऑन जेम्स फर्स्ट. मैंने कल भी बताया था आपको कि जॉन डन को जबरदस्ती धर्म बदलने के लिए प्रेशराइज किया गया था. ओथ ऑफ एलिजियंस उनको उस वक्त दिलाई जाती थी. आपको कॉलेज की डिग्री नहीं मिलेगी पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर आप अपना धर्म राजा के अकॉर्डिंग नहीं करोगे, यानी कैथोलिसिज्म छोड़ के. और क्योंकि कैथोलिक लोगों के ऊपर ये प्रेशर हमेशा रहा होगा, तो इस प्रोटेस्टेंट बनाने के लिए, एंग्लिकन चर्च में आने के लिए, तो जरूर बचपन से इस राइटर को सेवन स्लीपर्स का जो मिथ है उसके बारे में नॉलेज जरूर थी. दैट्स व्हाई ही हैज इनकॉर्पोरेटेड. हम लोग जब कविता लिखते हैं तो फ्रॉम वेयर द मटीरियल कम्स, इट इज ऑल इंटरटेक्चुअल. न जाने कहां से जो भी हमारे दिमाग में चीजें हैं, इट कीप्स कमिंग एंड गेटिंग accumulated ऑन द पेज. तो राइटर बात कर रहा है कि लगता है हम सो रहे थे, और साथ में उसने सटायर भी कर दिया है, ठीक है ना, राजा के ऊपर. इट वॉज सो दिस ऑल प्लेजर्स फैंसीज भी लगता है इस एनकाउंटर, इस सेक्सुअल, इस कार्नल प्लेजर यानी कि जो हमने सेक्स किया है उससे पहले का जो एनकाउंटर रहा है, सारे जो प्लेजर्स रहे हैं, वो लगता है बचकाने थे, बच्चे थे. लगता है हमने जिंदगी में कोई आनंद नहीं उठाया, इतना आनंद इस सेक्स में आया. Now he's not talking about the bodily pleasure which he has taken through this carnal pleasure. वो कहना चाह रहा है कि if ever any beauty I did see which I desired, कोई ब्यूटी अगर मैंने कभी देखी है या मैंने सोची है, and God it was but a dream of thee. Now this is true a love element and metaphysical and exaggeration also. लेकिन एक ट्रू एलिमेंट है कि राइटर आफ्टर राइजिंग इन द मॉर्निंग is too much again becoming bit there is a word, raunchy is a negative word and randy is a positive word. Randy in the sense like bit horny. Okay, so the writer feels here that there is another element in the poem right now that after getting up, is again by seeing the, I think must be the nude body of his beloved, is again feeling sexually aroused. He's a bit horny, randy, so he want to make love again. I think that is another situation in the poem, but because we are studying here from higher studies point of view, so ये सारी बातें मुझे बताना चाहता हूँ कि वो कैसे कैथोलिसिज्म के ऊपर वो कर रहा है और कैसे वो कहना चाह रहा है कि this particular encounter, sexual encounter was quite mature, और उससे वो जागा है, मतलब कि वो रियल में न्यू हुआ है, वो रियल में जवान हुआ है, वो रियल में स्पिरिचुअल हुआ है. क्योंकि स्लीप से जागने का एक मतलब और निकल रहा है यहाँ पे कि अब वो रात को सो के उठे, इसका मतलब है न्यू अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जिस अब वो अगले स्टैंजा में बताएगा व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. एंड नाउ गुड मॉर्निंग टू अवर वेकिंग सोल्स. तो यहां पर वो कहना चाह रहा है कि नाउ वी हैव बिकम सोल्स. अच्छा, अब द बिलवड इज म्यूट अगेन, एंटी फेमिनिस्टिक एलिमेंट इज प्रेजेंट. शायद उसको खुद को एक अकल आई है. समवेयर इट हैपेंस टू द मैरिड कपल. जब एक पर्टिकुलर एज बीत जाती है, 45, 40, 45, 50, 55 के होने लगते हैं, तो अलग अलग चक्र हमारी बॉडी में है, वो सक्रिय होने लगते हैं, एक्टिव होने लगते हैं. तो वो जो सेक्सुअल ऑर्गन्स के पास का जो एनर्जी का जो चक्र होता है, वहां से एनर्जी उठते उठते ऊपर आती है, और जब ऊपर आती है तो वी बिकम मोर स्पिरिचुअल. ये हिंदुइज्म में कहा गया. आई एम जस्ट हैविंग सम हिंदू इंटरप्रिटेशन टू दिस पोएम, एडिंग इट टू, क्योंकि हिंदू आप कह लो, लेकिन somewhere I think this is a realization. If somebody has added the theory of chakra to his or her explanation, that does not mean that someone is giving a religious touch to the poem. Actually this is, I think, our understanding कि हम कैसे समझते हैं. जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं अगर हिंदू हूं और मैंने जो कुछ पढ़ रखा है, तो my explanation will be colored by all these things. Okay, so the now good morrow to our waking souls. तो अब उसको लगता है कि वो जो सेक्सुअल एनकाउंटर उसका उस लड़की के साथ हुआ है, उसके बाद उसका एक अलग तरह का अंडरस्टैंडिंग फीमेल बॉडी को लेकर या सेक्स को लेकर के या स्पिरिचुअलिटी को, हो सकता है उसने अद्वैत फीलिंग किया हो. अद्वैत फीलिंग क्या होता है कि अद्वैत, क्योंकि देखो हम लोग जॉन डन की पोएम्स को मीरा से भी लिंक करते हैं. कई बार उन्होंने होली सोनेट्स लिखी हैं, डिवाइन मेडिटेशंस. जब हम उनको पढ़ते हैं, क्योंकि जॉन डन बिकेम अ ग्रेट डीन ऑफ एंग्लिकन चर्च,
तो हमें पता होना चाहिए कि दिस इज द मेकिंग ऑफ दिस राइटर इज। हालांकि एक बात और बताना बहुत जरूरी है कि दिस पोएम मस्ट हैव बीन रिटन अराउंड 1597, क्योंकि जो सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स इनका जो कलेक्शन है उस पोएम में, उस कलेक्शन में ये स्टार्टिंग के पार्ट को शो करती है। मतलब कि जब जॉन डन वॉज इन द मेकिंग ऑफ द डीन और अ स्पिरिचुअल पर्सन, ओके, तो उनकी लव पोएम के अंदर भी देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अगेप, द थ्योरी ऑफ अगेप, थ्योरी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यस बोलो अगर समझ में आ रहा है, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं अपनी पढ़ाई। एंड नाउ गुड मॉर्निंग टू अवर वेकिंग सोल, इसका मतलब है बॉडीली प्लेजर्स, ये जो एनाटॉमिकल प्लेजर्स है इनसे हट करके राइटर जो कहीं ना कहीं ट्रांसेंडेंटल फीलिंग्स आ रही है, स्पिरिचुअल फीलिंग्स आ रही है, विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर। और फियर से पता चलता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का लव था, क्योंकि वो डरते हुए किसी होटल में रुके हैं। होटल मतलब जो इन्स होती थी उस जमाने के अंदर, कि वो डरते थे पहले लेकिन अब नहीं डरते हैं। या वो प्री मैरिटल लव है, प्री मैरिटल एंड सेक्सुअल एनकाउंटर है, जिसमें आई थिंक द राइटर वांट्स टू कन्वे कि अब हमारी बॉडी से रिलेटेड वी आर नॉट अट्रैक्टेड मोर बॉडीली, और वो छुपते छुपाते जो हम सेक्स करते हैं वो शायद अब नहीं है। अब एक अलग रियलाइजेशन आ गई है। फॉर लव मतलब because all love of other sides control, this particular agape love of spirituality, transcendental love, has controlled all the other loves, okay, and makes one little room and everywhere। और इसके दो मतलब है यहाँ पे, रूम हैज अ पन। एक तो रूम जो उनका रूम है, और एक रूम का मतलब आपको पता है स्थान भी होता है, प्लेस होता है। कहता है कि ये जो रियलाइजेशन, सडन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन आया, इट विल मेक रूम फॉर ऑल द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब आप एक बात बताइए, जब हमारा चक्र खुलता है, 7 चक्र खुलते खुलते, जब अधिष्ठान चक्र से होते हुए, मूलाधार चक्र से, अधिष्ठान चक्र से होते हुए हृदय, और ये यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए जब यहाँ तक हम पहुँचते हैं, यहाँ तक तो सारे लोग नहीं पहुँचते, लेकिन वो जो रियलाइजेशन होने लगती है तो हमें कुछ कुछ ऐसा लगता है कि हमारी आंखें बदल गई हैं, हमें चीज़ें अलग नज़र से नज़र आ रही हैं। तो राइटर हैज़ उसने शायद अद्वैत फील किया है कि टू बॉडीज वर द्वैत, ओके, ऐसा समझा रहा हूं मैं। और वो मिंगल होकर के उनको जो यूनिकनेस, जो ट्रांसेंडेंटल यूनिकनेस नजर आई है, तो उसको शायद लग रहा है कि उसका विजन बदल गया है, देखने का नजरिया बदल गया है। हो सकता है उसका देखने का नजरिया, अपनी प्रेमिका को, अपनी बिलवड को देखने का नजरिया बदल गया हो, कि वो किस टाइप की other than this world kind of beloved है। Make one little room and everywhere, let see discoverers to new worlds have gone। कहता है कि अब दुनिया को दूसरे संसारों को खोजने दो। Again there is a satire on colonialism, के जो सी डिस्कवरी करके दूसरे देशों में लोग जा रहे हैं, उनको जाने दो। मेटाफिजिकल एलिमेंट भी है, बिकॉज मेटाफिजिकल पोएम में क्या होता है, राइटर somewhere mingles, or say he makes his poem a hot cauldron of things where he mixes so many different ideas and imageries and all। तो वो कह रहा है कि दुनिया को जाने दो और सी डिस्कवर करने दो। लेट मैप्स टू अदर्स वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन। अब यहाँ पे मुझे आपको एक और खास चीज बतानी है, और वो है कॉर्डिफॉर्म मैप्स। लिखिए आप कॉर्डिफॉर्म, CORDIFORM। कॉर्डिफॉर्म मैप के बारे में पता है तो मुझे बताइए जल्दी से। यस यस लिखिए, नहीं तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। आर यू अवेयर अबाउट कॉर्डिफॉर्म कार्टोग्राफी? कॉर्डी जो वर्ड है, कॉर्डियल से आया है, कॉर्ड, कार्ड, दे आर रूट्स फॉर हार्ट। तो कॉर्डिफॉर्म मैप्स कैसे होते थे? इफ यू गो एंड गूगल यू विल कम टू नो कि वो हार्ट शेप के मैप्स भी बनाए जाते थे कॉर्डिफॉर्म में। और हार्ट शेप के जो मैप्स बनते थे उसमें हाफ, ये जो अपन बनाते हैं ना आजकल ऐसे हार्ट, या ऐसे ऐसे कैसे बनाते हैं, शायद ऐसे बनाते हैं ना, तो दिस शोज हाफ हेमिस्फेयर, दिस शोज द अदर हाफ हेमिस्फेयर, एंड देन इट बिकम्स द वर्ल्ड। तो जो कॉर्डिफॉर्म मैप्स होता था कार्टोग्राफी में, क्योंकि देखो रेनेसा की पोएम है, रेनेसा में जो कार्टोलॉजी है, कार्टो मतलब मैप की जो स्टडीज है, इट वाज इवॉल्विंग डे बाय डे। और कहते हैं कि ज्योमेट्री की नॉलेज, एनाटॉमी की नॉलेज, ब्लड के सर्कुलेशन की नॉलेज, कई सारी पोएम्स में राइटर ने इन सब चीजों को जगह दी है, जॉन डन ने। इसीलिए कहा जाता है कि दे वांट टू सरप्राइज द रीडर विद देयर नॉलेज, ओके, विद द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स। जितने भी राइटर रीडिंग करता है उन सब को अपनी पोएम्स में डालता है। और आपको मालूम होना चाहिए, यू मस्ट बी अवेयर दैट द पोएम्स ऑफ जॉन डन, they were circulated privately among his friends।
तो वो अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, फ्रेंड में पेट्रन्स भी शामिल है। तो यहाँ पे बात चल रही है कि दुनिया को बाकी लोगों को, दोज हु आर वेरी क्यूरियस, संसार ढूंढने दो, उनको मैप्स से संसार को ढूंढने दो। लेट अस पोजेस वन वर्ल्ड, ईच हैथ वन एंड इज वन। हम दोनों का जो दो अलग अलग ह्यूमन बींग्स है वो एक हो जाए, एक कार्डो फॉर्म मैप की तरह, और द्वैत से अद्वैत हो जाए, सिंगल हो जाए, और हम दोनों ईच हैथ वन, ईच हैव अवर ये ऐसे कहना चाह रहा है कि यू हैव योर वर्ल्ड, आई हैव माई वर्ल्ड, ओके, बट लेट अस मिंगल। क्योंकि मैंने कहा ना, उसको एक अलग किस्म की अंडरस्टैंडिंग हुई है ड्यूरिंग मेकिंग लव, and he wants to convey this message through this poem कि love making is not a mechanical phenomenon, it is a very very spiritual phenomenon। और यही कारण है कि टी.एस. एलियट ने एक टर्म दी है, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। लिखिए, जॉन डन ने मेटाफिजिकल पोएम्स पोएट का एक ऐसे लिखा है, उसमें राइटर ने लिखा है कि अ थॉट फॉर जॉन डन वॉज एन इमोशन। लिखिए एक लाइन, अ थॉट फॉर जॉन डन वॉज एन इमोशन। इसका मतलब है कि टी.एस. एलियट वॉज हाईली इंप्रेस्ड बाय जॉन डन। यही कारण है कि एक एक इमेज, एक एक वर्ड, एक एक फ्रेज एक इमेज क्रिएट करता है, और उस इमेज के साथ में ऐसे लगता है जैसे पूरा पैशनेटली राइटर जुड़ा हुआ है। ओके, तो वो एक लव पोएम के अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स कर रहा है और वो इसको मेटाफिजिकल बना रहा है। थर्ड स्टैंजा पे आ रहा हूं। माई फेस इन दाइन आई, समझ रहे हो, दे आर सिटिंग क्लोज। माई फेस इन दाइन आई, मतलब तेरी आंख बन गई मिरर, मैं तुझे देख पा रहा हूं। दाइन इन माइन आई अपीयर्स, इसका मतलब है बोथ आर वन। ओके, एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेस रेस्ट। True plain hearts. Plain hearts means now we are not overwhelmingly, coming up with emotions. Our hearts are, देखिए, ऐसा कहा जाता है ना, मैंने कल फेसबुक पे एक कोई मेरा स्टूडेंट है, उसका योग करते हुए पोज देखा। उसने अपना बहुत ही टफ पोज लेते हुए एक फोटो शेयर की, तो मैंने देखा उसके यहाँ पे फ्राउन है, जबकि वो मुद्रा है ऐसी। तो मुझे लगा मैं लिख दूं कि पोज इज डिफरेंट एंड फेशियल एक्सप्रेशन आर डिफरेंट। इट मीन्स योर सोल इज नॉट कनेक्टेड विद बॉडी, यू आर सिंपली पोजिंग फॉर द सेक ऑफ पिक्चराइजेशन, पिक के लिए, सेल्फी के लिए। सेल्फी तो नहीं थी क्योंकि कोई फोटो और खींच रहा था। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आपके जब यहां पे शांति आती है हार्ट में, यहां शांति आती है, देन यू नो इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू योर फेस। बुद्धा, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके झाई पड़ी हुई है, शैलोज आर देयर ऑन योर फेस, एंड मेरी तरह यहाँ पे बहुत चिंता की लकीरें हैं, एंड देन यू से दैट यू आर द सीरीन, द एनलाइटेंड, द बुद्धा। यू कैन नॉट से दैट। ओके, सो इससे पता चलता है कि जब हर तरह की आउटर वर्ल्ड से राइटर ने परेशान होना बंद कर दिया है, ही हैज रियलाइज्ड दैट फाउंटेन ऑफ लव समवेयर इन हिज हार्ट। तो वो कह रहा है कि ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेस रेस्ट। हमारे फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट, ऐसा कहते हैं ना, तो वो यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर। तो हेमिस्फेयर का नाम आते ही वो कॉडी, जो मैंने अभी बात बताई थी, कॉडी फॉर्म का नाम ले रहा है यहाँ पे। कॉडी फॉर्म आर टाइप्स ऑफ मैप्स, उसको आपको गूगल करना ही चाहिए आज की क्लास में, क्लास के बाद। विदाउट शार्प नॉर्थ, शार्प नॉर्थ का मतलब होता है नॉर्थ में जो बड़े बड़े पर्वत है जहाँ पे बर्फ जमी है। विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, डिक्लाइनिंग इज यूज इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। आई थिंक ही इज सेइंग, यहाँ पे एक और लिटरेरी टर्म है, आई थिंक ट्रांसफर्ड एपिथेट है, क्योंकि सन इज डिक्लाइनिंग एंड मेक्स इट डार्क। It means now in our heart there is no snowy cliffs, यानी कि हमारे जो दो अलग अलग पर्सनालिटीज हैं, ना तो हमारे दिल में अंधेरा है, ना हमारे दिल में अब लैक ऑफ वार्मथ है। समझ में आ रहा है? शार्प नॉर्थ का कुछ और मीनिंग है, मेटाफर है बहुत तगड़ा। और डिक्लाइनिंग वेस्ट, whatever dies was not mixed equally। लाइन भी बहुत सिंपल बट कंफ्यूजिंग है। कह रहा है कि कोई चीज जब ढंग से मिक्स नहीं होती है, मतलब उसका एक ऑर्गेनिक फॉर्म नहीं होता है, तो वो मर जाती है। कैसे? यहाँ पे पोइटिक्स का भी मुझे नाम याद आ रहा है। एरिस्टोटल ने कहा है कि प्लॉट शुड बी ऑर्गेनिक। जैसे एक बकरा होता है, तो पूंछ की जगह पूंछ है, कान की जगह कान है, तो देन वी आइडेंटिफाई दैट,
ये एक बकरा है, या कि एक ह्यूमन बीइंग है। ट्यूमर हो जाए और किसी का फेस एकदम फूल जाए तो वो थोड़ा अटपटा लगता है ना हमको। तो राइटर क्या कह रहे हैं, वॉट एवर डाइज वॉज नॉट मिक्सड इक्वली। चीजें जब आपस में, भाई जैसे किसी की शादी हुई एंड देर इज नो कंपैटिबिलिटी बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। कंपैटिबिलिटी समझते हो ना, इट्स अ वेरी डीप वर्ड टू अंडरस्टैंड। लगता है शादी पैसे से कर ली, या किसी की हैंडसमनेस को देख करके, ब्यूटी को देख करके शादी कर ली, और बाद में बड़ी झगड़े वगड़े हो रहे, पता चला कि दे आर नॉट कंपैटिबल। ओके, बिकॉज वॉट एवर डाइज बिकॉज दे वर नॉट मिक्सड इक्वली। ओके, इफ आवर टू लव्स बी वन, अगर हम दोनों के जो लव है वो एक हो जाए। आई थिंक ये अब ये थोप रहा है, फेमिनिस्टिक रीडिंग करूं तो अपनी बिलवड के ऊपर कि तू भी वैसे ही सोच मेरे लिए, बी वन और दाउ एंड आई, और हम दोनों एक जैसा सोचेंगे तो एक हो जाएंगे। लव सो अलाइक, इफ आवर टू लव्स विल बी ऑफ सिमिलर काइंड, दैट नन डू स्लैकन, नन कैन डाई। ताकि स्लैकन मतलब डिक्रीज होना, कम होना, और नन कैन, एंड वंस यू नो आवर लव बिकम्स लाइक दिस, नीदर यू विल डाई नॉट आई विल डाई। इट मीन्स अब ये डाई का मतलब यहाँ पे अगेन काइंड ऑफ हाइपरबोली कि हम मरेंगे ही नहीं। तो मरने नहीं का मतलब है जॉन डन की पोएम्स में, इन ऑलमोस्ट ऑल द पोएम्स यू विल कम लव पोएम्स, द राइटर समवेयर टॉक्स अबाउट you know, a kind of immortality in love. Okay, and what kind of immortality? The immortality of the platonic love. कि अगर हम गैप को फील करें तो हम इस तरह से मिक्स हो सकते हैं कि हम लोग हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। सो अगेन दिस इज 11:11 now, very auspicious time to say to call it a day for today's class. Tomorrow will be a holiday because of Sunday. मंडे को आई विल बी डिस्कसिंग अगेन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का अगला पड़ाव आएगा आपकी क्लास में, एंड अगेन आई विल बी डिस्कसिंग ये जो आज पोएम एक्स्ट्रा दे रखी है, बट आई कुड नॉट डिस्कस इट टुडे, आई विल बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट क्लास। एंड कीप सर्चिंग माई वेबसाइट्स, एंड जिन बच्चों को ऑनलाइन एडमिशन लेना है फटाफट से एडमिशन ले लीजिए, सो दैट यू कैन गेट एक्सेस टू गुड ऑडियोज एंड स्टडी मटीरियल एंड पीडीएफ्स एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच।